शांति और सद्भाव का संदेश देती है। Yoga doesn't just change the way we see things, it transforms the person who sees it. A very warm and peaceful morning to everyone present here. Respected dignitaries present on the dais, respected Vice Principal ACS Free Maria Ma'am, my learned colleagues and dear children, welcome to this celebration of International Yoga Day. Today, we gather here not just to perform a set of physical poses, but to embrace a way of life that nurtures harmony between body, mind, and soul. Yoga, an ancient gift from India to the world, has helped millions of people all over the world to attain better state of physical and mental health. Dear students, learning yoga is all the more important for you. You all have such a hectic timetable. Okay, I know you struggle between your school, your homework, your tuition classes and much more, especially class 9th and 10th students. That is why you hardly get time for your mental and physical health. Yoga not only helps you to remain physically fit, it also helps you to remain calm, reduce your academic stress and improve memory retention. It encourages you to follow a healthy and disciplined lifestyle and live a life of values and ethics. With this spirit of unity, health and well-being, I welcome you all to this wonderful celebration. Let us begin our journey towards a healthier and happier life through yoga. Today, we are honored to have among us some special guests you can see on the stage. They are the experts in their field, experts in yoga asanas, and we look forward to your inspiring yoga demonstrations. Dear students, please welcome our special guests with a heartful round of applause. Thank you, students. Now, may I request our Vice Principal Madam to welcome Abha Yadav, the special instructor with a potted plant. I'll request Ridhya to give the potted plant to ma'am. Mrs. Abha Yadav is a yoga instructor with 8 years of experience, master's degree in Yoga Shastra and much more. Currently, Madam is serving as a yoga instructor in BARC. Now, I request our Vice Principal Madam to welcome our next dedicated yoga teacher and acupressure therapist, inspiring many lives. And he has been a yoga instructor for many years. So here we welcome him. I request ma'am to please welcome him with a potted plant. Thank you, madam, and welcome, sir. Now, next I would like to welcome Mr. Rohit Aldar. Madam, please welcome Rohit, sir, with a potted plant. Rohit ji has done his BA in Yoga Shastra and presently he is pursuing his MA degree also. He is working as a yoga instructor in BARC and he also is a national PASIS and has taken part in All India University Yoga Asana competition. Welcome once again, Rohit ji. It is my privilege to warmly welcome Ms. Manisha ji, a dedicated yoga instructor promoting health and wellness. I request Vice Principal ma'am to present a small token of gratitude. Bindu ma'am, you are requested to please come on the stage. So here we welcome our next guest. A big round of applause for them. Thank you, ma'am. We are honored to have among us Mrs. Gajal Sagar as a yoga instructor. I would request ma'am to welcome Ji teaching yoga
Since 8 years, along with this, she is also pursuing her master's degree in Yoga Shastra from Samaya College. Madam, please welcome Kajal. Thank you, Bindu Madam. Next, Neha Ji with a potted plant. She is a yoga instructor inspiring many lives for you. A big round of applause for them. Thank you, ma'am. Form of exercise. It is a way of life that promotes harmony of the body, mind, and soul. To enlighten us further on the importance of yoga, I now invite Ridhya Grover of Class 8 to deliver a speech. Good morning, everyone, respected Vice Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. My name is Ridhya Grover, and I am from Class 8B. Today, I feel honored to speak few words on the occasion of International Yoga Day. Yoga is an ancient gift from India to the world. It is not a form of exercise, it is a way of our life that helps us maintain healthy body, calm mind, and a balanced spirit. In today's fast-paced world, distraction and stress are common, where yoga teaches us the importance of inner peace, self-discipline, and concentration. The theme of International Yoga Day reminds us that the health is achieved when our body, mind, and soul work in harmony. Let us all take a pledge today to make yoga a part of our daily routine and inspires others to do the same. योगा हमारा सच्चा साथी, तन में इससे शक्ति आती, मन में आते नेक विचार, चलो योग करते हैं यार. Thank you and happy International Day to all of you. Thank you, Ridhya, for your thoughtful presentation on the significance of yoga. Now, your yoga is a journey of the self, through the self to the self. So on this special occasion of International Yoga Day, I request Shri Santosh Ji to address the gathering and commence the session. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम. और स्कूल नंबर 3 के जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है, मैं आपका यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिहार से हेल्थ एंड फिटनेस सेक्शन के जो हमारे टीचर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया. लास्ट 5 सालों से हम लोग हर एक स्कूल में यहाँ पर योगा सेशंस ले रहे हैं. कॉलोनी में भी योगा क्लासेस चलते हैं. तो आज हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जो मना रहे हैं, जैसे कि विद्या ग्रोवर ने बताया आपको कि ये भारत की विश्व को देन है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? कोई बताएगा? हाथ ऊपर करें. यस प्लीज़. यस, वेरी गुड. 2014 से हम लोग यहाँ पर योग दिवस मना रहे हैं. ये योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है? इस साल की योगा की थीम क्या है आपको पता है? हर साल हमारी योगा की कुछ ना कुछ थीम होती है. तो इस साल की हमारी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. इसका मतलब क्या है कि इस साल ऐसा क्यों करना पड़ा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग? ये इस तरीके से हमें इस थीम को क्यों लाना पड़ा? तो लास्ट कोरोना के बाद में जो भी हमारे पूरे विश्व में जो तकलीफ़ें छाई, उसके बाद में पता चला कि एलोपैथी को भी एक लिमिट है, और अगर अब हमें अच्छी तरीके से खुद के जीवन को सुधारना है, जीवन को अच्छे तरीके से चलाना है, तो हमें हमारी जो हमारे पुरखों ने दी हुई धरोहर है उसको साथ में लेके चलना होगा. और उस समय पे जो योग साधक थे, योगा पढ़ाने वाले लोग थे, वो बहुत अच्छे से हेल्दी सिखा भी रहे थे और सारी चीज़ें शुरू थी. भले वो ऑनलाइन रहे, लेकिन लोग उसके वजह से फिट फाइन हेल्दी रहे और लोगों का डर कोरोना के समय पे बहुत कम हुआ. जो योगा साधक थे, योगा फैमिलीज थी उनमें. और ड्यूरिंग ये 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यंग बच्चे भी,
मतलब हार्ट अटैक का जो ये सिलसिला था अराउंड 55-60 इयर्स के ऊपर वो चलता था। वो आजकल आप अगर न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको खबरें मिलती है कि बहुत सारे यंग बच्चे भी हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं। मतलब जिनकी 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, ऐसे भी बच्चे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो इस साल में बहुत बड़े पैमाने पे यंग एज में बहुत सारे लोगों की अननेचुरल डेथ्स हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम को चलाया जाए, ता करके जो बच्चे हैं, जो आजकल के फास्ट फूड में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पैक फूड में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसको कम किया जाए, घर के खाने के ऊपर आपका ध्यान बढ़ाया जाए और साथ ही साथ कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में उभारी जाए। तो स्कूलों में ये योगा डे हम लोग करने का उद्देश्य यही है कि आप लोग आपकी इन पढ़ाई के साथ में आप आगे चलकर योग के बारे में खुद को थोड़ा सा समझें और कुछ जो यहाँ पर पीटी टीचर होते हैं उनके माध्यम से भी कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर एक्सरसाइज किए जाते हैं, एक्सरसाइज लिए जाते हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा सा खुद को फिट फाइन हेल्दी रखें। अगर आप फिट फाइन हेल्दी है तो क्या होगा, आपको कोई भी काम करते समय आपकी ऊर्जा जो है बनी रहेगी। अभी बच्चों का क्या हो रहा है, स्कूल से आते ही बच्चे थक जाते हैं, तो वो थकना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि स्कूल से जाने के बाद में, हम लोग जब यंग थे तो स्कूल से जाने के बाद जो हमारी स्कूल बैग वहाँ पे रख दी घर पे, तो खेलने के लिए जाते थे तो माँ को खाने के लिए बुलाना पड़ता था। तो यहाँ पे हमारे कॉलोनी में 100 से ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, तो आप लोगों को खेलना है। आज जब आप खेलेंगे, जब आप ज़्यादा खेलकूद करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा और उसके साथ साथ अगर योग से आप जुड़ते हो तो आपको पता चल जाएगा। आपको इसी समय पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताकर कुछ होगा नहीं। यूनो के माध्यम से 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 177 देशों ने पूरे विश्व में उसको बहुमूल्य वोट देकर मनाने की कोशिश की। अभी आज 20 जून है, कल 21 जून आज स्कूल है करके हम लोग यहाँ पर योगा डे ले रहे हैं। 21 जून कल 177 देशों में योग का सेशन हर एक जगह पे होगा। तो ये खाली एक प्रायोगिक तौर पे होगा, लेकिन बहुत सारे विश्व के जो देश हैं वहाँ के स्कूलों में रेगुलर लेवल पर योगा को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी उस तरीके से पहल होनी चाहिए। बीआरसी में अब हमारी जो AES है उसके माध्यम से एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से इस पहल को और आगे लेकर जाना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और हम सभी लोग अभी योग के लिए शुरू करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। धन्यवाद। जैसे एक सोल्जर रहता है उस तरीके से आपके पोस्चर होने चाहिए। हल्का सा स्पाइन को इरेक्ट करें, आपकी गर्दन चिन पैरेलल टू ग्राउंड, धीरे से आरामदायक स्थिति में बैठिए और अपनी आंखों को भी बंद कीजिए। सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। आंखें बंद रखते हुए अभी अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लेकर आइए। आंखें बंद करते समय बहुत ज़ोर से बंद नहीं करनी है, बहुत ही आराम से अपने चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान बनाइए। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सांसें हमारे साथ चलती है उसको कुछ देर के लिए जानने की कोशिश करें। सिर्फ मेरी सूचनाओं के ऊपर अपने ध्यान को बनाइए। कुछ देर के लिए आप मेरी सूचनाओं का पालन करेंगे। आपकी आंखें बंद, चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान। फिर से देखिए अपने मेरुदंड को, अपने स्पाइनल कॉलम को अच्छे से सीधा करें। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी और सांसों के ऊपर आपका बहुत ही अच्छे से ध्यान बना हो। सांसों को जानिए कुछ देर के लिए। किसी की सांसें लंबी चल रही है, किसी की छोटी, किसी की गहरी, जैसे भी सांसें चल रही है। चेहरे के ऊपर हल्का सा तनाव है तो उसे रिलीज करें। बहुत बढ़िया। इस शांत अवस्था में कुछ देर के लिए बने रहिए। ये शायद पहली बार होगा आपके जीवन में कि आप इतनी देर तक अपने श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। प्रार्थना को मैं पहले दोहराऊंगा, आप उसके पीछे दोहराएंगे। मैं पहले बोलूँगा, आप पीछे प्रार्थना को ये करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले
सिंगल ओमकार के साथ। तो दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, chin parallel to ground with closed eyes and smiling face. We are going to chant. First, take a deep breath. लंबी गहरी सांस लीजिए। सब लोग एक साथ बोलेंगे ओमकार। Second round, breathe in. Last round, breathe in. आंखें बंद रखिए। ओमकार चैंटिंग अभी आपने की, जो वाइब्रेशन हुआ है उसे एंजॉय कीजिए। अभी इसी के साथ हम लोग प्रार्थना के लिए जाएंगे। आंखें बंद रहे, वाइब्रेशन को एंजॉय करते हुए। मैं पहले बोलूँगा, पीछे आप दोहराइए। ओम संगच्छध्वम्, ओम संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, संवदध्वम्, संवो मनांसि जानताम्, संवो मनांसि जानताम्, देवाभागम्, देवाभागम्, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते, संजानना उपासते। अपनी आँखों को बंद रखिए। प्रार्थना को जो प्रभाव हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हुआ है, उसे कुछ देर के लिए जानेंगे। प्रार्थना का अर्थ है हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों के भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। धीरे से ज़मीन की ओर देखते हुए अपने आँखों को खोलिए और नमस्कार मुद्रा से बाहर आ जाए। धीरे से अभी सभी लोग खड़े हो जाए, आराम से। बहुत ज़्यादा हलचल नहीं करनी है, बहुत स्लोली आपको उठना है। हम लोग अभी योग सत्र कर रहे हैं। योग सत्र में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई हड़बड़ी नहीं होती। बच्चे आप हो, लेकिन आपको बहुत ही आराम से उठना है। आराम से हर एक आज्ञा का पालन करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को समझते हुए हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तो धीरे से अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा मतलब गर्दन। अपने गर्दन के ऊपर काम करेंगे। तो मैं जो हमारे टीचर्स हैं, मैं टीचर्स को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा देख लीजिए। और साथ साथ हल्का सा एक एक एरिया में सामने से यहाँ पे दिखाई देगा, कोई टीचर वहाँ डेमो करना चाहता है वहाँ पे बच्चों में, तो आप डेमो भी कर सकते हैं। आपसे कुछ गलती हो रही है तो उनको देख के आप कर सकते हैं पहले। और फिर गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर लेकर आए। आराम से अपने गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे। चिन डाउन, ब्रीद आउट, कम इन सेंटर, ब्रीद इन, गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, ब्रीद आउट। आपने सेंटर में सांस ली, फिर से नीचे आ जाइए, ब्रीद इन। 2 more राउंड्स करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेते हुए गर्दन को सीधा करें, फिर नीचे लेकर जाएं। सेकेंड राउंड, यस। वापस सर को सीधा लेकर आते हुए सांस लीजिए, चिन को ऊपर उठाते हुए ब्रीद आउट कीजिए। वेरी गुड। लास्ट राउंड, कम इन सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, गो डाउन, ब्रीद आउट, कम इन सेंटर। फिर से सांस लीजिए, चिन अप, ब्रीद इन, चिन अप, ब्रीद आउट, टेक इट डाउन। रिलैक्स, गर्दन को सीधा रखिए। हमने अभी गर्दन को अप एंड डाउन पोजीशन में घुमाया। हम लोग गर्दन को पूरे दिन भर में कितनी बार, अभी लंबी गहरी सांस लीजिए सेंटर में, ब्रीद इन, और गर्दन को राइट साइड में टर्न करें, ब्रीद आउट, कम इन सेंटर, ब्रीद इन, टर्न योर नेक टू योर लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट। सेम एक्शन और 2 राउंड प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, कम इन सेंटर, टर्न टू योर राइट साइड, ब्रीद आउट, कम इन सेंटर, वंस अगेन ब्रीद इन, टर्न टू योर लेफ्ट साइड। देखिए गर्दन की मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव आ रहा है उसे महसूस करें, समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए। गर्दन को नीचे लेकर आए एंड गो फॉर रोटेशन। देखिए लेफ्ट से उन्होंने राइट की तरफ लेकर आए, ये एक राउंड हुआ। इसी तरीके से हमें 3 राउंड करना है। सभी लोग अपने हाथों को कमर के ऊपर लेकर आए। आंखें अगर आप बंद कर सकते हैं तो अपने ध्यान को और अच्छे से आप शरीर के अंदर, मन के ऊपर उसका प्रभाव जान सकते हैं। कीजिए प्रैक्टिस। ब्रीद इन, स्टार्ट रोटेशन, स्लोली, बहुत ही स्लोली कीजिए। आपको गर्दन में कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसे समझिए। वेरी गुड। सेकेंड राउंड, वेरी गुड। लास्ट राउंड, बहुत अच्छे। स्लोली स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों हाथों को रिलैक्स करें। आरामदायक स्थिति में अभी आप खड़े रहिए। हम हाथों को बाजू से ऊपर उठाते हुए हाथों को ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक बार मैडम को देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा 45 डिग्री में आ जाए बच्चों को। हाँ यस, तो आपको दिखेगा भी। और ये तो अभी आभा मैम को देखिए, वो डेमो कर रही है। स्कंध खिंचाव, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाते हुए जाएंगे। यस, वेरी गुड। कीजिए। और दोनों हाथों को कंधों से खिंचाव देना है, हाथ को ऊपर नहीं उठाना है। पहला एक कंधा, फिर दूसरा कंधा, इस तरीके से खिंचाव दीजिए। दोनों हाथों को हल्का सा कानों के पीछे लेकर जाए। यस, और फाइनल स्ट्रेच दीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। आंखें बंद कीजिए। आपके कंधों में जो खिंचाव तनाव आ रहा है उसे जानिए। रिलीज। धीरे से सामने की तरफ से वापस आ जाए। योग की विधि कैसे है, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं उसी तरीके से उसमें वापस आना है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। स्कंध खिंचाव के बाद स्कंध चालन, संचालन। शोल्डर और शोल्डर के ऊपर रखिए एंड स्टार्ट शोल्डर रोटेशन। दोनों कोहनियों को एक साथ सामने की तरफ लेकर आते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। वेरी गुड। देखिए आपकी गर्दन, कंधों की मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव आ रहा है उसे जानने की कोशिश करें। आपका स्पाइन इरेक्ट है, शोल्डर बैक और शोल्डर्स के और गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी दिखने में प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको करेंगे तो आजकल मोबाइल का जो यूज़ ज़्यादा हो रहा है उसके लिए ये बहुत कारगर प्रैक्टिसेस है। 1-2 घंटे में 1-2 मिनट के लिए आप ज़रूर समय निकाल सकते हैं। रिवर्स द डायरेक्शन, वंस अगेन रिवर्स इट। जितने रोटेशन 4 या 5 रोटेशन चेंज करके लेंगे। यस, हाँ। और अभी इसी तरीके से पहले ब्रीद इन, सेंटर में सांस लीजिए। साइडवर्ड ट्विस्टिंग के लिए जाए। गो फॉर ट्विस्टिंग टू योर राइट साइड। वेरी गुड। राइट साइड, नॉट लेफ्ट। Yes, and then come in center, breathe in, right side, left side. स्पाइन को बहुत ज़्यादा इरेक्ट नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस करने के बाद कोई तकलीफ हो। कम इन सेंटर, वन मोर राउंड, गो फॉर अपोजिट साइड।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फाइनल पोजीशन में थोड़ा सांसों को ध्यान दें। फिर सेंटर में आइए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। रिलीज। वेरी गुड। स्पाइनल कॉलम के ऊपर हमने अभी हल्का सा ट्विस्टिंग देते हुए काम किया। फोल्ड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा घुटनों को आगे की तरफ फोल्ड नहीं कर रहे हैं, आपके टोस के लेवल तक। रिलीज। इसे और एक राउंड प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, टेक योर बोथ पाम पैरेलल टू योर शोल्डर एंड गो डाउन। थोड़ा सा पैरों में अंतर रखना है। वेरी गुड। रिलीज। देखिए आपके घुटनों में पता चल रहा है आपको कि आप हल्का सा और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खिंचाव तनाव दीजिए। देखिए खिंचाव तनाव आया आपके स्पाइनल कॉलम से, आपको ऊपर की तरफ पता चल रहा है कि मेरे हाथ को खींचा है तो मेरे कमर में, थोरेसिक रीजन में, गर्दन में खिंचा हुआ है। अभी फाइनल पोजीशन में हल्का सा अपने पैरों के एडियम को ऊपर उठाते हुए ऊर्ध्व ताड़ासन में जाइए। यहाँ पर अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। दोनों हाथों को हल्का सा कानों के पीछे लेकर जाए और फाइनल खिंचाव तनाव दीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वेरी नाइस। रिलीज। धीरे से वापस आ जाए। वापस आने की विधि कैसी है? जैसे आप गए थे उसी तरीके से आपको वापस आ जाए। इसे वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिलीज। धीरे से पोस्चर देख लीजिए। कोई भी स्टूडेंट इस पोस्चर को ट्राई ना करे शुरुआत में। यस प्लीज। देखिए उन्होंने पैर को अपने एड़ी को अपने ग्रोइंग्स के करीब रखा, फिर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आपको जाना है। यस। इस पोस्चर आपने देखा होगा, साधु मुनि इस पोस्चर में खड़े रहते हैं, तो उस पोजीशन में हमें आना है। जो बच्चे कर सकते हैं, हम लोग फोटो क्लिक करने के लिए खाली इस पोस्चर को करेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अगर आप अच्छी देर तक होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए। रिलीज। वापस आने के लिए फिर से नमस्कार मुद्रा में हाथों को नीचे लेकर आना है और पैर को रिलीज करना है। सेम एक्शन विथ अपोजिट साइड, मतलब दूसरे पैर के साथ में भी वही करेंगे। समझ में आया सबको? यस। तो अभी मैं पहले अपने बाएं पैर को सीधा रखिए, दाहिने पैर को आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर उठाइए। आंखें खुली रखें, आंखें बंद नहीं करनी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्लोली कम सेंटर, रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाए। वेरी गुड। अभी अपोजिट लेग के साथ में करेंगे। देखिए आप बच्चे हो, आपका बैलेंस बहुत अच्छे से होते हुए खुद को समझिए कि मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, आपको पता चलेगा। इससे आपको आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कैसे काम करना है वो पता चलेगा। वेरी गुड। रिलीज। एक पाद वृक्षासन के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट पोस्चर के लिए जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। देखिए जब भी हम लोग, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे घर में ओल्ड एज पर्सन रहते हैं, देखिए, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन को ऊपर उठाइए, लंबी गहरी सांस लें और सामने किसी वस्तु को पकड़ने जा रहे हैं उस तरीके से आप आगे की तरफ झुकेंगे। स्लो। दोनों पैर घुटने में सीधे रखने हैं, पैरों में मुड़ाव नहीं, खिंचाव नहीं। वेरी गुड। बहुत अच्छे से सभी लोग कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग में जाइए। हस्त पादासन, गो फॉर फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैर घुटने में सीधे और अभी पूरे कमर से अपने शरीर को ढीला कर दीजिए। कमर से नीचे झुकते हुए अपने कमर से शरीर को ढीला करें। वेरी गुड। कम इन सेंटर, स्लोली ऊपर आ जाए, दोनों हाथों को लटकाते हुए। रिलैक्स। कैसा लगा आपको? बैकवर्ड बेंड स्लोली, बहुत ज्यादा बैकवर्ड बेंड देने की कोशिश ना करें। जिनको कमर का दर्द है, टीचर्स में या गर्दन और राइट साइड टिल्टिंग के लिए जाएंगे, साइड से स्लोली। देखिए संभल कर जाना है। वेरी गुड। राइट, नॉट लेफ्ट। कोई राइट में है, कोई लेफ्ट में है। आपका फोटो अच्छा आना चाहिए। वेरी गुड। राइट में। यस। ओके, वेरी नाइस। कम इन सेंटर। सेम एक्शन लेफ्ट साइड कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कम इन सेंटर, गो फॉर वन मोर राउंड। और एक राउंड प्रैक्टिस करें।
और एक राउंड देखिए, वेरी कम सेंटर, गो फॉर अपोजिट साइड। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी बच्चे लोग। आप स्टूडेंट्स को आपको पता चलेगा शरीर में कहाँ पर खिंचाव, तनाव, कितना मैं फिट हूँ, कितना मुझे अच्छा लग रहा है, कितना तकलीफ हो रही है, आपको पता चलेगा। रिलीज, वापस आ जाए। वेरी नाइस। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से सूचनाओं का पालन किया। वेरी नाइस। अभी हम लोग, ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ सेशंस हुए, अभी हम लोग सिटिंग पोजीशन में कुछ आसना सिखाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आभा मैम से कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। आप लोग कोई भी आधा आसन में बैठ जाइए आराम से, जो आपको कंफर्टेबल लगे। धीरे से बैठ जाइए अपनी जगह पे। सोल को एक साथ में ज्वाइन कीजिए, सोल टू सोल। धीरे से अपनी गर्दन एकदम सीधी रखिए, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करिए जैसे सर ने देखिए किया हुआ है। ऐसे दोनों को अपने पैर के सोल को अच्छे से पकड़ना है। पीठ सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। आंखें बंद कीजिए। कर रहे हैं, सिर्फ आपको उसे देखना है अपनी बंद आंखों से। वज्रासन से वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए, फिंगर्स के इंटरलॉक को हटा दीजिए और धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स कीजिए। अपने नेक को, गर्दन को एक साइड में रिलैक्स कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। वन को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होते हुए राइट लेग को फोल्ड करिए। फिर आप राइट साइड टिल्ट हो जाइए और लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। जो अपना काफ मसल से उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हमारा माइंड बॉडी रिलैक्स होता है। बढ़ाता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। थ्रोट पे अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। जिसको डबल चिन का प्रॉब्लम है, थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है उष्ट्रासन। धीरे से आंखें खोलिए, आराम से राइट हैंड को ऊपर से लेके आते हुए राइट सोल जो आपका पैर का है उस पे हाथ रखना है और भी लेफ्ट हैंड को उठाइए, लेफ्ट सोल पे रखिए। जिसको नहीं हो रहा है बैलेंस वो लोग अर्ध कीजिए, पूल में मत जाइए। फाइनल पोस्चर में अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आंखें आप खुला ही रखो प्लीज, आराम से कीजिए। बहुत जोर जबरदस्ती करना ही है, कंपल्सरी ऐसा नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना देर तक आप मेंटेन कीजिए। वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए, गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को सीधा वहीं से रिलैक्स करते हुए आराम से वज्रासन में आ जाइए। पाम को अपने सामने रखिए जैसे सर ने दिखाया आपको, और हाथों को स्लाइड करते हुए सामने की तरफ आना है। जितना आप जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए अपने हाथों को। तो धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। पेट पे अच्छे से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, उसको आप फील कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। नी में थोड़ा सा गैप रखना है। अभी राइट हैंड को उठाना है और अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखिए। सर देखिए आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को उठाइए और अपने राइट शोल्डर पे रखिए। दोनों हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए गर्दन सीधी, नेक स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। ये नेक पेन के लिए, फोकल शोल्डर के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए, आराम से दोनों हाथों को एक एक करके रिलैक्स कर दीजिए। आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए। अभी वज्रासन से बाहर आएंगे, लेफ्ट लेग को रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वक्रासन।
वक्रासन में जाने के लिए दोनों पैरों को एक साथ में ज्वाइन कर लीजिए। हाथ शरीर के साइड में रखना है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए घुटने से। अपनी गर्दन को राइट साइड में लेकर जाइए। अच्छे से पूरे स्पाइन में ट्विस्टिंग करना है आपको। वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी गर्दन को सीधे वे अपना हेड उसके ऊपर रखना है। ये ऐसे हाथों को रखना है और ऐसे सर को रख दीजिए। यस। हाँ, पैर क्रॉस कीजिए तो आपको पीछे वालों को लगेगा नहीं। माँ का आसन जो वाइब्रेशन की पूरी बॉडी में हो रही है, उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। आपका बॉडी माइंड रिलैक्स हो रहा है, उसे आप फील कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी हम करेंगे कोबरा पोज, जिसे भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन में जाने के लिए दोनों पैरों को साथ में ज्वाइन कीजिए। आपको सर दिखा रहे हैं, आपको पहले से देखिए। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। हाथ अपने पैरों को साथ में ज्वाइन कीजिए। आपका चिन जमीन पे फिक्स रखना है। अभी आपको दोनों आपका हाथ जो पाम दिख नहीं रहा है, ऐसे सपोर्ट के लिए रखना है। लेट जाइए, रखना है। नी को स्ट्रेट रखिए। आंखें बंद कीजिए। अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। ये लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए, नी पेन के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। पूरा टाइम आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं तो ये प्रैक्टिस भुजंगासन और शलभासन कीजिए। आपका जो बैक होता है, बैक के पेन होता है, वो धीरे धीरे आपका वो रिलैक्स होगा। वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आराम से दोनों रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ अपने शरीर के साइड में रखना है। पाम फेसिंग डाउनवर्ड, हथेलियां नीचे उठाना है। आपकी बॉडी एक ब्रिज की जगह हेड को नहीं, हेड आपका रिलैक्स रहेगा, हेड को नहीं उठाना है। आराम से अपने बटक को उठाइए। आंखें बंद कीजिए। अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। ये भी हमारे लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी है। सर ने कैसे किया ये देखिए। ऐसे आंखें खोलिए। आराम से आंखें बंद करते हुए अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। वापस आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जमीन पे रिलैक्स कर दीजिए। पवनमुक्तासन जो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। पेट का जो फैट होता है वो कम करता है। किसी को भी आराम से चेस्ट के पास में लेके आने के बाद में आप यहाँ पे कंफर्टेबल है, नेक पे कंफर्टेबल है, उससे बैठ जाइए। स्पाइन इरेक्ट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। अच्छे से जिसमें आप कंफर्टेबल है वैसे बैठना, पर आपकी पीठ सीधी रखनी है, गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर कप की तरह बनाया सा जैसे ऐसे रखना है, या तो आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। पीठ सीधी रखिए। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के फायदे क्या है वो पहले आप लोग सुन लीजिए। आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। राइट नोज से राइट नोज को क्लोज करते हुए धीरे धीरे आपको लेफ्ट नोज से श्वास पूरा बाहर छोड़ना है। ये हमारा 1 साइकिल हुआ। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये 1 साइकिल। लेफ्ट नोज से लेफ्ट नोज से एक्सहेल। वापस लेफ्ट नोज को क्लोज करिए। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल। ऐसे आप अपने से 2 राउंड कीजिए। अपने
नी के ऊपर आपको हाथों को रखना है, पीठ सीधी, स्पाइन चिन पैरेट होता ग्राउंड। अपने सर दिखा रहे हैं, टांग को पूरा बाहर निकालिए, उसको ट्यूब बनाना है। ट्यूब जैसा मैंने बनाया है, ये देखिए। आगे रोल करना है, टांग को बाहर निकालना है और रोल करना है, और उस जो ट्यूब बनाया है उससे आपको इनहेल करना है। लंबा गहरा सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, माउथ को क्लोज करते हुए धीरे धीरे आपको नोज से एक्सहेल करना है। वापस फिर से इनहेल कीजिए, आप ट्यूब बना देंगे जो टंग से, माउथ को क्लोज करिए और एक्सहेल नोज से करना है। 2 राउंड और भी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल होता है। और बहुत से फायदे इसके हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आपका मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट कीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, आपका मन बहुत अच्छे से शांति से पढ़ाई में लगेगा। तो अभी करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम, और फिर एक्सहेल करेंगे तो वापस इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale। तो मेरी स्टेज की तरफ कीजिए, सर को अपने हेड रीजन। जो लोग ऐनक लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, चश्मा निकाल दीजिए, बाजू में रखिए संभल कर, किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, संभल कर रखना है। अभी आगे आपके दोनों हाथ जमीन की ओर, हथेली जो नीचे है उसे ऊपर कीजिए। अगर किसी ने हथेली नीचे रखी है तो उसे हल्का सा, हाँ यस, पाम फेसिंग अपवर्ड। अभी आराम से आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। अपनी डीप रिलैक्सिंग, पूरे शरीर में वाइब्रेशन को क्रिएट करना है, इमेजिन करना है। ब्रीद इन, और एक राउंड ब्रीद इन, लास्ट राउंड ब्रीद इन, पैरों की उंगलियों से सर तक पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन हो, हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रचारबद्ध हूँ। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। आज के योग सत्र की संपन्नता हम लोग सिंगल ओमकार और शांति पाठ के साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
भूतानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, sir. Thank you, madam, for this wonderful session of yours. I thank you, students, for taking part in this session. And today, on this International Yoga Day, let us take a pledge not to end our practice, but make it sure that this is the beginning of a mindful and balanced life. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ पर आपने जो भी कुछ सीखा है, आप उसे हर रोज़ अपने घर में किसी भी समय जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम निकालकर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा, ठीक क्यों ना हो। May I now invite Poonam Madam to propose vote of thanks and express our gratitude to everyone who has contributed to the success of this event. Poonam Madam, please. सुप्रभात। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 3 मुंबई परिवार की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। श्री संतोष जी, आभा मैम, मनीषा जी, नेहा जी, गगन जी और रोहित जी ने बहुत ही रोचक और धैर्य से हम सबको योग की भिन्न भिन्न मुद्राओं को सिखाया। मैं आशा करती हूँ कि आपके द्वारा सिखाई गई यौगिक क्रियाएं हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेंगी, जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकें। आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं उप प्रधानाचार्य महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। आपने यौगिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे सभी बच्चों को प्रोत्साहन मिला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे अध्यापकगण, कॉस्मेटिक स्टाफ का भी योगदान सराहनीय है। अंत में मैं बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अनुशासन में रहते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से अपने अपने व्यायाम और अपनी अपनी यौगिक क्रियाएं दिखाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने भी बताया है, कि ये एक शुरुआत है। ये आपको आज विद्यालय में सिखाई गई क्रियाएं आप अपने घर में शाम के समय, सुबह के समय, जब भी आपको समय मिले, इन क्रियाओं का ज़रूर इस्तेमाल करिए, ताकि आप एक स्वस्थ नागरिक बनके तैयार हो। जब आप यहाँ से बाहर निकलें तो आप स्वस्थ नागरिक होने चाहिए और अच्छे नागरिक होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।